फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट स्टडी चैनल। आज हम लोग अकाउंट्स सब्जेक्ट के डिसोल्यूशन ऑफ फर्म चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के वीडियो सीरीज न केवल आपको इसकी गहराई से परिचित कराएंगे बल्कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी अपने आप दे देंगे। तो चलिए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अनलॉक करते हैं। देखिए ये डिसोल्यूशन क्या होता है। सिंपली बोला जाए तो द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग पार्टनरशिप बिजनेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करने के तरीके को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स। What do you mean by dissolution of firm? The process of breaking up and discontinuing the partnership business is called dissolution of firm. The dissolution of firm spells an end of the business. In other words, the dissolution of partnership between all the partners of a firm called dissolution of firm. It means complete breakdown or extinction of the relation of partnership between all partners of the firm. ध्यान दीजिए, complete breakdown or extinction of the relationship of partnership, ये है dissolution of firm। और dissolution of partnership क्या होता है? It involve only the change the relationship of the partner in partnership business. For example, A and B are two partners. C is admitted. A, B, C are partner. B is retired. B is died. A, B, C are partner. B retire and D comes as admission। कहने का मतलब reconstitution of the firm is dissolution of partnership। ठीक है, dissolution of firm और dissolution of partnership दोनों अलग अलग होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं dissolution of firm। तो ये जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है डिसोल्यूशन बाय द पार्टनर्स, दूसरा होता है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय पार्टनर ये भी कई प्रकार का होता है, जैसे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट था कि 2 साल तक ही बिजनेस चलेगा, या फिर सारे पार्टनर के कंसेंट से पार्टनरशिप बिजनेस बंद कर दिया जाएगा। कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर और ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट, और बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक इट अनलॉफुल, जैसे वार छिड़ गया तो पार्टनरशिप बिजनेस बंद करना होगा। और इफ द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप इज अनलॉफुल फॉर इट्स वेरी इंसेप्शन, तो ये सब रीजन है कंपल्सरी डिसोल्यूशन का। बाय कंटिजेंसी, अचानक से कोई अनहोनी घटना कंटिजेंसी हो गया, कोई पार्टनर मर गया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, जैसे बाय एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ विच द फर्म वाज कंस्टिट्यूटेड और द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर एडवेंचर और एडवेंचर्स और द डेथ ऑफ एनी पार्टनर और द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। और नेक्स्ट है बाय नोटिस, if partnership business is at will then by giving notice the firm can dissolve. These are the reasons of dissolution by partners. Then what are the reasons of dissolution by the court? Insanity, that is when a partner has become unsound mind, the court may dissolve the firm on the petition of any other partners. Permanent incapacity, नाम से ही पता चल रहा है, when a partner or partners become permanent incapable of performing his duty under partnership, the court may dissolve the firm. Misconduct, where a partner or other than partner suing is guilty of misconduct and it is likely to affect prejudicially the carrying on the business. Breach of agreement, when there is a breach of agreement between the partners, the firm may dissolve by the court. Transfer of interest, where a partner has in any way transferred the whole of his interest in the firm to the third party, or where his share has been attached under a degree or sold in the recovery of arrears of land revenue or any other, the court may dissolve the firm. Working at loss, when partnership business suffer loss from recent years and unable to recover himself, the court decided to dissolve the partnership business or any other ground. There are also certain reasons on the ground which court interference to dissolve the firm. In this way, there are two types of dissolution of firm: dissolution by partner, dissolution by court. When we solve the problem of dissolution, what we have to done in dissolution? We have to done these 4 things. Number 1, close all the ledger account. Number 2, realize all the assets. Number 3, paid all the liabilities. Surplus refunded to partner and deficit introduced by the partner. In our examination approach, there are 4 types of problem in dissolution of firm. Number 1, voluntary or simple or general dissolution. Number 2, due to insolvency. Number 3, by sale or conversion into company. And number 4, by amalgamation of firm. Voluntary और simple means 3-4 पार्टनर है, आपस में झगड़ा करके बंद कर दिए या आपस में बात करके बंद कर दिए, उसको बोलते हैं वॉलंटरी डिसोल्यूशन, स्वेच्छानुसार बंद कर देना। इंसॉल्वेंसी मतलब होता है 2-4 पार्टनर है, उसमें से कोई पार्टनर दिवालिया हो गया और वो घर से पैसा नहीं ला सका, इसलिए फर्म को बंद कर देना पड़ा। तीसरा है सेल और कन्वर्जन इनटू कंपनी, पार्टनरशिप बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, जब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे या पार्टनरशिप बिजनेस को किसी कंपनी को बेच देंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। और लास्ट है अमालगमेशन ऑफ फर्म, 2 फर्म मिलके एक तीसरा फर्म बना रहे हैं, जैसे फर्म ए एंड बी
एंड फर्म एक्स एंड वाई, ये दोनों मिलके फर्म ए बी एक्स वाई बना रहे हैं। तो फर्म ए बी और फर्म एक्स वाई बंद करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना होगा। अब इसका अकाउंटिंग एंट्रीज और कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ करके आपको दिखाते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में एक अच्छा आइडिया हो सके। चलिए देखिए, एग्जामिनेशन अप्रोच से इस डिसोल्यूशन चैप्टर को 4 पार्ट में बांट के सीखा जाए। पहला पार्ट है सिंपल या वॉलंटरी डिसोल्यूशन, दूसरा पार्ट है डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, तीसरा है सेल टू कंपनी और कन्वर्जन इनटू कंपनी, और चौथा है अमालगमेशन ऑफ फर्म। पहला पार्ट हम लोग करते हैं सिंपल और वॉलंटरी डिसोल्यूशन। इसका अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होता है, ये टोटल इसका 6 स्टेप है। इस 6 स्टेप में हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। सम्स देखते हैं, स्टेप समझाते जाएंगे और उसी स्टेप में सम्स को करते जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 पार्टनर है, अमर, अकबर एंड एंथोनी। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। बैलेंस शीट टोटल है 10 लाख और बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया। हर सम्स में ऐसा ही रहेगा, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी के सम्स में ऐसा ही रहेगा, एक बैलेंस शीट दिया रहेगा और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया। उससे अपने को ये 3 अकाउंट बनाना रहेगा। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा है कैश ऑब्लिक बैंक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टेप में सबसे पहला स्टेप है क्लोज द लेजर अकाउंट अपीयर इन द बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, एट बुक वैल्यू। जितना भी लेजर होता है वो सब ट्रेडिंग और पीएल में क्लोज होता है। ट्रेडिंग का इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रहता है, प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को ही क्लोज कर देंगे तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अपने आप क्लोज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि बैलेंस शीट के आइटम को हम लोग क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट में 2 साइड है, एक लायबिलिटी साइड है, एक एसेट साइड। लायबिलिटी साइड का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा वो सीखना है। उसी तरह से एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं डेबिट होगा। कहाँ डेबिट होगा वही सीखना है। जरा यहाँ देख लीजिए, बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज करने से पहले जरा यहाँ एक सेग्रीगेशन देख लीजिए। यहाँ है सेग्रीगेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइजेबल एंड पेबल। ये एसेट्स 3 प्रकार का होता है। रियलाइज्ड एसेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं कैश ऑब्लिक बैंक, ऑलरेडी रियलाइज। दूसरा है रियलाइजेबल एसेट, ऐसा एसेट जिसको बेचकर कुछ मिले, जिसका कुछ रियलाइजेबल वैल्यू हो। फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब। करंट एसेट में कैश बैंक छोड़ के वो तो रियलाइज्ड में आ गया, बाकी सब रियलाइजेबल में आ जाएगा। मतलब रियलाइजेबल एसेट्स में आएगा फिक्स एसेट, करंट एसेट, सेफ्ट कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट, इट। और नॉन रियलाइजेबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं हो। एसेट्स में दिखाते हैं किंतु सेल करके कुछ रियलाइज नहीं हो। जैसे प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ है एसेट साइड में, वो नेट लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब अगर एसेट्स में लिखा है तो कोई रियलाइज वैल्यू। उसके बाद लायबिलिटी साइड में 2 लायबिलिटी है, पेबल और नॉन पेबल। ऐसा लायबिलिटी जिसको पेमेंट करना है, उसमें 3 है, आउटसाइड, सेमी इनसाइड और इनसाइड। आउटसाइड मतलब सिंडिकेटर, बिल्स पेबल, लोन एंड अदर। सेमी इनसाइड में आता है पार्टनर्स लोन और इनसाइड में आता है पार्टनर्स कैपिटल। नॉन पेबल लायबिलिटीज, भगवान ऐसा लायबिलिटी सबको दे। इसमें ये 2 प्रकार का होता है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल मतलब जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, प्रॉफिट लॉस बैलेंस, और स्पेसिफिक मतलब ऐसा रिजर्व प्रोविजन जो किसी पर्टिकुलर पर्पज। तो लायबिलिटी ये टोटल 5 प्रकार का होता है, पेबल आउटसाइड, पेबल सेमी इनसाइड, पेबल इनसाइड, नॉन पेबल जनरल, नॉन पेबल स्पेसिफिक। और एसेट्स ये 3 प्रकार का होता है, रियलाइज्ड, रियलाइजेबल और नॉन रियलाइजेबल। अब कैसे क्लोज करते हैं, क्वेश्चन में देखिए एसेट साइड में कैश दिया हुआ है, तो कैश तो रियलाइज्ड एसेट्स है। जो रियलाइज्ड एसेट्स होता है, ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए कैसे क्लोज करते हैं। जो रियलाइज्ड एसेट्स है उसका सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं। देखिए यहाँ खुला हुआ है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ऐसे लेजर ओपन करके यहाँ पे टू बैलेंस बीडी कर, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ऐसे अकाउंट खोल के यहाँ पे टू बैलेंस बीडी कर, 1 लाख रुपीज। उसके बाद एसेट साइड में जितना भी आइटम दिया हुआ है वो सब रियलाइजेबल एसेट्स, जिसको बेचकर कुछ मिले, और नॉन रियलाइजेबल तो है ही नहीं। तो जितना भी रियलाइजेबल एसेट्स है दैट विल बी क्लोज्ड टू रियलाइजेशन। एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियलाइजेबल एसेट्स। मतलब जितना भी रियलाइजेबल एसेट्स है वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे 2 साइड में चलिए सब उतार देते हैं। टू मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, डेटर्स, स्टॉक, पहले सारा नाम लिख लेते हैं फिर सारा अमाउंट उतार लेंगे। बिल्डिंग है 5,30,000, मशीनरी है 50,000,
फर्नीचर 25,000, ट्रेडमार्क 45,000, डेटर्स ग्रॉस डेटा डेबिट में लिखेंगे और इसका प्रोविजन रिजर्व यहाँ क्रेडिट साइड में। तो स्पेसिफिक जो लायबिलिटी होता है वो यहाँ बाई साइड में आता है। ऐसा रिजर्व प्रोविजन जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो, यहाँ बाई साइड। डेटर्स है 1 लाख और इसका प्रोविजन यहाँ बाई साइड में आ जाए। प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000। स्टॉक है 1,55,000। नॉन रिलाइजेबल एसेट्स तो कुछ है नहीं, अगर होता तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 हो जाता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नॉन रिलाइजेबल एसेट्स। अब देखिए लायबिलिटी साइड में, पेबल आउटसाइड में आपका आ रहा है सिंडिकेटेड बिल्स पेबल लोन। तो ये जो सिंडिकेटेड बिल्स पेबल लोन है का जो पेमेंट होगा वो ये सब एसेट्स बिक्री होके जो पैसा आएगा उसी से पेमेंट होगा। तो ये सब एसेट्स जहां ट्रांसफर है तो पेबल आउटसाइड लायबिलिटी भी वही ट्रांसफर हो जाएगा। लायबिलिटी है वो डेबिट हो जाएगा और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगा पेबल आउटसाइड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में यहाँ बाई हो जाएगा, बाई बैंक लोन, बाई सिंडिकेटर, बाई बिल्स पेबल। तीनों आइटम का अमाउंट है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। के बाद है पेबल सेमी इनसाइड जो पार्टनर्स लोन है वो भी रिलेशन अकाउंट में यहाँ बाई साइड में कर देते हैं, लेकिन वो तो है नहीं। या फिर पेबल सेमी इनसाइड का अलग अकाउंट भी खोल लेते हैं, खोल के बाई बैलेंस बीडी कर देंगे, फिर जब पेमेंट करेंगे तो उसमें 2 कैश कर देंगे, या फिर यहाँ भी ट्रांसफर कर। और के बाद है पेबल इनसाइड पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में उतार देते हैं यहाँ बाई साइड में। 1 जनवरी का बैलेंस दिया हुआ है तो वही लिख देंगे 1123 बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। के बाद है नॉन पेबल स्पेसिफिक, वो है प्रोविजन फॉर बैड डेट जो हम लोग रिलेशन अकाउंट में बाई करती है। देखिए ये वाला 5,000। नॉन पेबल जनरल में देखिए जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व पीएल ये सब जैसे हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में करते आ रहे हैं वैसे यहाँ भी करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ बाई साइड में आएगा बाई रिजर्व अकाउंट। ₹1,00,000 दिया हुआ है, 5:3:2 में बढ़ जाएगा 50,000, 30,000, 20,000। तो ये पहला स्टेप तो खत्म, क्लोज द लेजर अकाउंट अपीयर इन द बैलेंस। सेकंड स्टेप में क्या है देखिए, रियलाइजेशन ऑब्लिक सेल ऑफ एसेट्स। ये जितना भी एसेट्स हम लोग यहाँ क्लोज किए हैं ये सब रियलाइज होगा। रियलाइज होगा तो रिलेशन अकाउंट के बाई साइड में आएगा। यहाँ अगर सेल आउट होगा तो बाई कैश बैंक होगा। अब कोई पार्टनर लेगा तो उसका नाम बाई साइड, देखिए वही एंट्री है यहाँ पे कैश बैंक डेबिट रियलाइज्ड अमाउंट। जितना का एसेट्स है कोई जरूरी नहीं है कि उतना में ही बिक्री हो, उससे ज्यादा में भी हो सकता है, उससे कम में भी हो सकता है। रियलाइज्ड अमाउंट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एग्रीड वैल्यू जितना में टेक ओवर करेगा टू रियलाइजेशन। रिलेशन अकाउंट में ये दोनों बाई हो जाएगा। तो जब सेल आउट होगा तो यहाँ पे बाई होगा। जब कोई पार्टनर लेगा तो उसका नाम हो। उसी तरह से लायबिलिटी है अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये जब पेमेंट होगा तो टू कैश बैंक होगा। कोई पार्टनर लेगा तो उसका नाम एंट्री होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। देखिए स्टेप में वही एंट्री है। स्टेप 3 में देखिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब एसेट्स को रियलाइज करेंगे या पार्टनर कैपिटल लेगा तो रिलेशन में बाई हो। लायबिलिटीज का पेमेंट होगा या कोई पार्टनर लेगा तो रिलेशन अकाउंट में 2। देखिए बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कौन सा एसेट्स कौन सा लायबिलिटी क्या हुआ है वो सब लिखा हुआ है। द रियलाइजेशन शो द फॉलोइंग रिजल्ट। ये सब एसेट्स बिक्री होकर पैसा मिला है तो यहाँ पर लिखेंगे बाई साइड में बाई कैश बैंक। मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग सब रियलाइज हुआ है। मशीनरी से मिला है 70,000, फर्नीचर से मिला है 20,000, बिल्डिंग रियलाइज हुआ है 5,50,000। थिएटर रियलाइज हुआ है बुक वैल्यू लेस 10%। बुक वैल्यू 1 लाख है, 10% कम करके 90,000 रियलाइज हुआ है। नेक्स्ट बोला बिल्स पेबल वे सेटल्ड अगेंस्ट ट्रेडमार्क। पहले इतना को जोड़ के आउटर में ले आते हैं। आउटर में आएगा 7,30,000। कैश बैंक अकाउंट में 2 हो जाए, टू रियलाइजेशन अकाउंट।
नेक्स्ट बोला है कि बिल्स पेबल अकाउंट वेर सेटल्ड अगेंस्ट ट्रेडमार्क। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, कोई भी लायबिलिटी होल्डर अगर किसी एसेट्स को लेके सेटल्ड हो जाता है तो उसका एंट्री यहाँ पर नहीं हो कि वो लायबिलिटी और एसेट्स दोनों ही रिलेशन अकाउंट। जैसे बिल्स पेबल को कैश पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगा बिल्स पेबल टू कैश, चेक देंगे तो बिल्स पेबल टू बैंक, स्टॉक देंगे तो बिल्स पेबल टू स्टॉक, ट्रेडमार्क देंगे तो बिल्स पेबल टू ट्रेडमार्क। लेकिन बिल्स पेबल और ट्रेडमार्क दोनों ही रिलेशन अकाउंट में क्लोज, एंट्री होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, इसलिए उसको इग्नोर कर दे। आगे देखिए क्या लिखा है, क्रेडिटर वेयर सेटल्ड अगेंस्ट स्टॉक फॉर ₹95,000। 1 लाख का क्रेडिटर है और वो स्टॉक को 95,000 में लिया है, बाकी अमाउंट उसको देना हो। क्रेडिटर देखिए यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा टू कैश बैंक, और डैश देखिए क्रेडिटर 1 लाख का क्रेडिटर है और स्टॉक ले लिया है 95,000 में, बाकी 5,000 रुपीज पेमेंट करना। नेक्स्ट है गुडविल was sold for ₹10,000 and unrecorded asset estimated at ₹10,000 was sold for ₹5,000। तो वापस से लिखते हैं बाई कैश बैंक। ये हम लोग इसी कैश बैंक में कंटिन्यू करके जोड़ सकते थे अगर आउटर में नहीं किए होते। गुडविल और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, गुडविल 10,000 और अनरिकॉर्डेड एसेट जितना रियलाइज हुआ है 5,000 रियलाइज हुआ है, आउटर में 10,000। कैश बैंक में 2 कर देते हैं संग संग, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट दिया हुआ है डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹12,000। ये खर्चा एंट्री होगा रिलेशन टू कैश बैंक। देखिए रिलेशन में अभी यहाँ पे और अमाउंट आएगा, ये एक्सपेंसेस को अलग से दिखाएगा, इस कैश बैंक में ऐड नहीं कीजिएगा। रिलेशन एक्सपेंसेस का अलग से ट्रीटमेंट समझाएंगे आपको, कई तरीके का होता है। फिलहाल अभी जान लीजिए ये एक्सपेंसेस है, जिस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करते हैं ये एक्सपेंसेस वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। रिलेशन अकाउंट से प्रॉफिट लॉस का कंप्यूटेशन होता है, इसलिए ये एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएगा। एंट्री होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12,000 कैश बैंक में बाई कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। के बाद लास्ट में ये चेक करना पड़ेगा कि जिस एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है उसको बुक वैल्यू पर रियलाइज करना होगा, बेचना होगा। जिस लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है उसको बुक वैल्यू पे पेमेंट करना। यहाँ पे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ट्रेडमार्क बिल्स पेबल ले लिया है, क्रेडिटर हो गया, स्टॉक को क्रेडिटर ले लिया है। लायबिलिटी में बिल्स पेबल सेटल हो गया है, क्रेडिटर स्टॉक को ले लिया है। देखिए बैंक लोन बचा हुआ है तो यहाँ पेमेंट करना होगा बैंक लोन। 1 लाख आउटर में आ जाएगा 1,05,000। कैश बैंक में बाई हो जाएगा, बाई रियलाइजेशन 1,05,000। बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज कर दिए, सारे एसेट्स को रियलाइज कर दिए, सारे लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिए। अब क्या स्टेप है देखिए, स्टेप 4 में है पेमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस, वो भी कर दिए। स्टेप 5 में है क्लोज द रिलेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन पीएल रेशियो अकॉर्डिंगली एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्लोज टू कैश बैंक। मतलब रिलेशन अकाउंट के बैलेंस को क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में और पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस को क्लोज करेंगे कैश में, और कैश ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा। नहीं टैली होगा अब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलिए बैलेंस करते हैं। रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, बैलेंस आएगा डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल है 10,50,600, वही टोटल यहाँ भी लिखते हैं 10,50,600। डेबिट का ये सारा अमाउंट लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा 28,000। ये बैलेंस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में। जैसे रिवॉल्यूशन को पार्टनर्स कैपिटल में क्लोज करते थे वैसे ही रिलायंस को पार्टनर्स कैपिटल में क्लोज करेंगे। लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। ये 28,000 पीएल रेशियो में तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। अमर अकबर एंथोनी, पहले वाले का आएगा 14,000, दूसरे वाले का आएगा 8,400 और तीसरे वाले का आएगा 5,600। ये रियलाइजेशन प्रॉफिट है, डेबिट में आएगा तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आएगा तो लॉस। रियलाइजेशन में टू पार्टनर्स कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा बाई रियलाइजेशन।
पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे कैश बैंक। अमर के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,64,000। अकबर का आ रहा है 238,400 और एंथोनी का आ रहा है 325,600। यही टोटल डेबिट साइड में भी आ जाएगा और कैपिटल का बैलेंस भी वही आएगा क्योंकि डेबिट साइड में तो कुछ है नहीं। ये क्लोज होगा कैश बैंक में, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैश देके फाइनल सेटलमेंट 1,64,000, 2,38,400 and 325,600। कैश बैंक के सामने भी बैलेंस में यही आएगा, सेम अमाउंट। कैश बैंक तो कैश बैंक में यहाँ बाई होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सबका कैश बैंक डेबिट में ही आए, वो कैश बैंक क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। तो क्रेडिट में आएगा तो कैश बैंक में 2 हो जाएगा। अब देखिए कैश बैंक का बैलेंस टैली होना चाहिए। कैश के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 8,45,000। क्रेडिट साइड का टोटल भी यही आ रहा है, सेम आ रहा है 8,45,000। देखिए टैली इस तरह से वॉलंटरी डिसोल्यूशन का सम ये 3 अकाउंट खुलता है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये कैश। यही रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त सम के साथ। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।